हाय, एम आई ऑडिबल? इमारिस डुनार्डियो, क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज लेट मी नो इधर ऑन द चैट और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. इमारिस डुनार्डियो, एम आई ऑडिबल? Okay, thank you for the reply. We'll wait for another 2 to 3 minutes for others to join. अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है देन वी विल स्टार्ट. ठीक है? अभी एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लेस होगा पार्टिसिपेंट्स. बट नो वरीज, सिंस यू हैव ज्वाइंट सो वी विल स्टार्ट एनीवेज. बट विल वेट फॉर 2 to 3 more minutes. ओके. Okay, then let's start. Mm, So we were doing straight lines. So let's solve a question or two from straight lines. Okay. Let me share the screen. Okay, we have one more participant, EMRS LT. I hope everyone is able to see the screen also. At the same time, you are able to hear me properly, right? EMRS 11th. Yeah. So आप देख सकते हो कि we have done our straight line वाला part. We have done all the different forms of equations of straight lines. We also did some questions. So I'll be doing one or two more questions and then we will start with what do we call circles. Okay. EMRS Celti, am I audible to you? You can reply me on the chat. ठीक है. अगर किसी ने लास्ट लेक्चर मिस किया हो, if someone hasn't attended the last lecture,
You can get your recordings एंड उस रिकॉर्डिंग को एक बार देख लेना, तो वो उससे आपको सारा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं एक दो। चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस वाले प्रॉपर्टी पे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला था, मैंने लिखवाया होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो। दोनों सबहेडिंग डालो। परपेंडिकुलर, perpendicular distance is simply distance of a point P. Let's suppose x1 comma y1. Perpendicular distance of a point P x1 comma y1 from a straight line x plus by plus c equal to 0. इसका एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यू हैव ए पॉइंट P which the coordinates of which is x1 comma y1 and you need to find this distance, okay, this distance d from this straight line ax plus by plus c is equal to 0. So this d can be found out using the formula mod. Mod we apply mod because if you get the answer in negative also, you will take the output as positive because distance can never be negative. So what we will do is we will put these coordinates here on this equation, which will give me ax1 plus by1 plus c divided by under root of कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन, ओके। प्लीज नोट कर लीजिए इसको। आई होप दिस इज क्लियर टू ईएमआरएस जनार्दियो एंड ईएमआरएस एलटी। अब ये कैसे आया, दैट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो लेंथी प्रूफ है इसका, बट ये फॉर्मूला को याद रखना बिकॉज दिस फॉर्मूला इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, not only in straight lines. You will use this formula in other chapters of coordinate geometry also, like circles, parabola, ellipse, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, सो एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, you can expect that you will be given a point and a line and you'll be asked to find the perpendicular distance. और इसका एक दूसरा सवाल भी बन सकता है wherein you will be given the distance and you will be asked some unknown like find the value of k, find the value of k given that given that the distance given that the distance of the point
of the point from the line from the line 3x minus 4y plus k is equal to 0 is 4 units. Is 4 units. Given that the line 3x minus 4y plus k is equal to 0 is 4 units. So try करिए एक बार. EMRS DL Puram, EMRS Jonardeo, and EMRS Celti. We are doing the last part of our the chapter straight lines. इसके बाद after 2 or 3 questions we will start circles. ठीक है. इसको ट्राई करो और बताओ आंसर क्या है. आंसर आप लोग चैट पे भी शेयर कर सकते हो. ठीक है. आंसर you can share on the chat also, and please participate in giving answers. I'm not that well today. खांसी हो रहा है तो इसलिए आई विल बी टीचिंग यू लाइक धीरे धीरे. ठीक है. स्लोली स्लोली वी विल बी मूविंग. चलो देखते हैं इसका. कुछ आए तो बताइए. ट्राई जरूर करिए. ठीक है. किसी ने चैट पे लिखा पॉइंट क्या है सर. पॉइंट 4,1. अच्छा पॉइंट नहीं दिया क्या मैंने. ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 माय मिस्टेक. इतना बड़ा कैसे मिस्टेक हो गया. पॉइंट है 4,1. प्लीज थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा. माय मिस्टेक. पॉइंट है 4,1. ठीक है. ये डिस्टेंस दे रखा है 4 यूनिट्स और लाइन है 3x माइनस 4y प्लस के इक्वल टू 0. अब ट्राई करिए. अब हो जाना चाहिए.
ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? नथिंग बट ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square. अब यहाँ पे आप देख लो, इफ यू वांट यू कैन राइट क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। दैट x1 का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 4, y1 का काम कौन कर रहा है 1। मैं चेक कर लेता हूँ इफ समवन इज आंसर्ड 12। ओके, वेरी गुड। एटलीस्ट एवरीवन शुड ट्राई गिविंग आंसर्स, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर आल्सो डजंट मैटर, ठीक है। जितना हम गलती करेंगे उतना सीखेंगे। सो x1 y1 इज 4 and 1। और अगर इक्वेशन की बात करें तो a का काम कर रहा है 3, b का काम कर रहा है -4। ओके, दिस माइनस वाला चीज को भी यू विल हैव टू टेक केयर। देन c का काम कौन कर रहा है k। हम कई बार माइनस प्लस के चक्कर में गलत हो जाता है। देन b विल बी नथिंग बट ax1, so 3 into 4 minus 4 into 1 plus k divided by under root of 3 square। अब यहाँ पे +4 स्क्वायर भी लिख सकते हो या -4 स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर एनीवेज विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट ओनली। एंड इन प्लेस ऑफ d वी कैन रिप्लेस आवर d विथ 4। तो यहाँ पे सॉल्व करो तो 12 minus 4 8 plus k divided by 16 plus 9 25 and square root of 25 is 5। Now I think you are well aware of the fact that mod of something is equal to कुछ अगर कांस्टेंट होता है तो a का वैल्यू k भी होगा और a का वैल्यू -k भी होता है आपका, ठीक है। सो mod opens both for negative and positive। सो हम यहाँ पे बोलेंगे कि 8 plus k/5 का वैल्यू या तो +4 भी हो सकता है, 8 plus k/5 का वैल्यू -4 भी हो सकता है, ठीक है। तो 8 plus k is equal to 20, therefore k is equal to कितना हो जाएगा 12। यहाँ से 8 plus k is equal to माइनस का 20, so k आ जाएगा -20। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट हियर। ओके, ठीक है। मॉड का सबको सिग्निफिकेंस पता है। तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था फंक्शंस वाले टॉपिक में। So whenever mod opens both for positive and negative. Please note down the solution. So the answer which you have given, I think EMR is, yeah, Jonarda is also given the correct answer, 12, and Celti has also given the correct answer, which is 12 and -28. So 12 and -28 both are correct. In your school exam, even if you write one answer also, still that will be considered complete only. But डिपेंड ऑन द मूड ऑफ द एग्जामिनर, वो शायद आपका एक नंबर काट सकता है, ठीक है। सो बेटर टू राइट बोथ द आंसर्स, ठीक है। देयर इज नो हार्म इन राइटिंग द आंसर्स। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं आखिरी, और फिर वी विल स्टार्ट विथ सर्कल्स वाला टॉपिक, ठीक है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum and product is 1 and -6। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन यहाँ। फाइंड द इक्वेशन, या इक्वेशंस भी हो सकता है, ऑफ द लाइन which cuts off intercepts on the axis ax es, मतलब दोनों एक्सिस, whose sum and product are 1 and -6 respectively। यहाँ पे आपको x by a plus y by b वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा ट्राई करो। लेट मी डिक्टेट द क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose
which cuts off intercepts on the axis whose sum and products are 1 and -6 respectively. Any answer? Let me check. Please repeat the question. Yeah, sure. Find the equation of the line which cuts off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively. ठीक है, तो आपको पता है कि इक्वेशन जो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, दैट इज x by a plus y by b equal to 1, where a and b is nothing but your x and y intercept. ठीक है, where this is nothing but x and y intercept. So as per the given question, sum मतलब a plus b is nothing but 1 and product of intercept is -6. So all you have to do is solve this equation and get the value of a and b. That will give you the equation of your straight line. So what you can do here is you can either write a in terms of b and put this value here. So this will give me a into, or 1 minus b into b is equal to -6. So here I will get a quadratic equation, right? Simple. We are substituting. We are using the concept of substitution here. So this is nothing but b minus b square equal to -6. So this is nothing but b square minus b minus 6 equal to 0. Now think of those two values, which on adding will give you -1 and multiplying will give you -6. So I can clearly think of a value which is -3 and +2. So I can split this v as -3b plus 2b minus 6 equal to 0. Okay. If I take b common here, so this will give me b minus 3. And from if I take 2 common here, I will get b minus 3. So again, if I take b minus 3 common,
So this time I will get b minus 3 into b plus 2 equal to 0, which will eventually give me b equal to 3 and b equal to minus 2. Okay. Now if I put this value of b here, so a is equal to 1 minus b is 3, so minus 2, and a is equal to 1 minus b is minus 2, which will give me positive 3. So I have two values of a and two values of b here. That's why we will have two different equations. That's why the question it was asked to find the equation of the lines. Why? Because intercept can be in this way also, it can be in this way also, right? So that's why you'll have two different equations here. So first equation will be x by, when I was putting b equal to 3 here, I got a equal to minus 2. So x by minus 2 plus y by 3 is equal to 1. And the second equation is, when I was putting b equal to minus 2 here, I got a equal to 3. So x by 3 minus y by 2 is equal to 1. So these two are the equation of the straight line in intercept form. You can further solve it. You can, if you want, you can simplify it more. You can take LCM here, which is minus 6. So, or you can take only positive 6 for that matter. Okay, taking this negative on the numerator. So minus 3, so this is minus 3x plus 2y is equal to 1. So minus 3x plus 2y minus 6 equal to 0. So this is the perfect form of representing a straight line equation. ठीक है, इसी तरह इसको भी you can further simplify it. ओके, डन. किसी का कोई रिप्लाई? ठीक है. आई थिंक नाउ एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड. नेक्स्ट, अच्छा लिख लो लिख लो, लिखा नहीं है तो लिखो फटाफट, नोट इट डाउन. ओके, टॉपिक का नाम डालो सर्कल. पहले तो हम समझते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि आपने 10th में भी पढ़ा हुआ ही है वैसे तो. ठीक है. सो द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर इज योर डायमीटर, ठीक है. नेक्स्ट, let's suppose this is AB and this is my center, and center से लेके surface तक का दूरी is your radius. Okay, any line from one end to other end on the surface is nothing but your chord. So you can also say that diameter is your biggest chord. Any line passing through the circle and touching at a certain point of contact, so this line is called your tangent. Okay, and one line that crosses the circle cutting both the points is called secant. ठीक है, इतना ज्यादा यूज होता नहीं है क्वेश्चन में, बट फिर भी पता होना चाहिए.
So some of the terminologies like diameter is the line passing through the center. Chord is nothing but any line from one surface to another surface. Tangent is nothing but a line which is touching the circle at a point of contact. सेकेंड एक एंड से दूसरे एंड पे पूरा उसको क्रॉस करते हुए लाइन बनाएगा, दैट इज सेकेंड. ओके, नाउ टेंजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, एरिया आई थिंक एवरीबॉडी नो, एरिया वगैरह का डिस्कशन करके फायदा नहीं है. आई विल जस्ट गिव यू ए क्विक रिवीजन, रिवीजन ऑफ टेंथ. टेंथ के जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ते थे और नाइन्थ में जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ते थे उसका हम क्विक रिवीजन एक कर लेते हैं आपको, ठीक है. सो रिवीजन ऑफ टेंथ, क्या क्या हमें काम आएगा वो हम कर लेते हैं. सबसे पहला कि कोई भी एक सर्कल है, अगर कोड, अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है. प्लीज नोट दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं किसी भी कोड में तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर कोई भी सर्कल है, टेंजेंट अगर आपने बनाया तो रेडियस के साथ वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है. कोई भी टेंजेंट है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा आपका, किसके साथ, रेडियस के साथ. इसको भी याद रखिएगा, ठीक है. थर्ड, थोड़ा सा मैं फास्ट करा रहा हूँ ये सब चीजें. आई एम गोइंग अ बिट फास्टर हियर बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन इन योर लोअर स्टैंडर्ड्स. सो इसलिए मैं ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहता, और प्रूफ ऑफ की कोई नीड नहीं है, ठीक है. Proof you have already done in your 10th. No one is going to ask you the proof. Why I'm giving you this, teaching you this, because these are some basic things of 10th and 9th standard जिसके questions में आप use करोगे IIT वगैरह की questions को solve करने में. Not directly but somehow indirectly you will use this. तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है. उसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो आप दोनों, सॉरी दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो सर्कल पे तो दोनों का लेंथ बराबर होता है, ठीक है. पी टी इज इक्वल टू पी. ये भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता था टेंथ में. और वहां पे इसको प्रूफ कैसे करते थे, यहाँ पे आप इसको सेंटर से लाइन ड्रॉ करते थे और फिर ये वाला थ्योरम का मदद से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे, और बाय सीपीसीटी, corresponding parts of congruent triangle, you say that the length of tangent becomes equal. So for now you will have to keep the formula in mind. Fourth formula is कि कोई भी सर्कल है उसका डायमीटर सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है. कहीं पे भी ले लो, किसी भी पॉइंट पे सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. सो डायमीटर ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सरफेस. इसी प्रॉपर्टी को किसी बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि द सेमी सर्कल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सरफेस. ओके, सो मोर और लेस बोथ आर सेम ओनली. चलो फिफ्थ है, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट कर लो. If you want to write the statements you can write in your own words. Okay, क्योंकि 11th का पार्ट वी विल स्टार्ट आफ्टर डूइंग दिस सम प्रीवियस रिविजन्स, ठीक, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. डन. किसी का कोई क्वेरी? बीच बीच में मैं इसलिए देखते रहता हूँ चैट.
आफ्टर दिस फिफ्थ थ्योरम, बहुत फेमस फॉर्मूला हुआ करता था ये, कि किसी भी सर्कल के कोड अगर कोई सरफेस पे थीटा एंगल बनाता है तो वही कोड सेंटर पे डबल बनाता है आपका। ठीक है, याद आ रहा है? सिक्स, किसी भी सर्कल में कोई भी कोड अगर मेजर सेगमेंट के सरफेस पे अगर एंगल थीटा बनाएगा तो वही कोड किसी भी मेजर सेगमेंट के सरफेस पे एंगल थीटा ही बनाएगा, कहीं पे भी ले लो आप चाहे तो। ठीक है, this was also an important property, this was also considered to be an important property when we were in you were in 10th standard. Next seventh property, कि जैसे कोई सर्कल है, अगर दो कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो ये ए बी है, ये सी डी है, और मान लो ये पी है, तो यहाँ पे ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी होता है आपका। ठीक है, सी पी इंटू डी पी, ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी डी बोल लो या डी पी बोल लो। ये सी पी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है क्या? ये बहुत इजीली आप प्रूफ कर सकते हो सिमिलर ट्राइंगल की मदद से। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन में ये वाला कंस्ट्रक्शन कर लेते हो, इसको ज्वाइन कर देते हो, फिर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन जाता है, और ये एंगल सेम हो जाता है आपका, ये वाला प्रॉपर्टी लग जाता है। तो बाय सिमिलैरिटी इजीली इट कैन बी प्रूव दैट AP इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। इसका यूज हम IIT का एक क्वेश्चन करने में भी देखेंगे अभी। लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर सपोज एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और उसी पॉइंट से आपने एक सेकंड ड्रॉ किया, मान लो PT है, ये SR है, तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ये भी कभी कभी यूज आ जाता है। ठीक है, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज विच यू लर्न इन योर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, जो हम यूज करेंगे 11th में भी, बट नॉट ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट स्टिल। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, डायरेक्ट मैं IIT का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, वी विल लेट्स सॉल्व ए क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बैक इन 29 21, बहुत पुराना सवाल भी नहीं है,
फिगर बना लो मेरे साथ साथ। ओके, रफ सा एक फिगर बना लेते हैं। सो दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज योर पॉइंट B, एंड दिस इज योर पॉइंट Q। दिस इज A, दिस इज O, दिस इज O dash which is the center of the circle। ठीक है। गिवन, गिवन क्या क्या है? OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। OA मतलब ये वाला, दिस इज योर 1 यूनिट। उसके बाद OB इज इक्वल टू 13 यूनिट। दिस एंटायर OB यहाँ से लेके यहाँ तक। So definitely this length will be how much? 12 unit. Because entire length is 13, OA is 1, therefore AB is 12 unit. And it is also given that PQ is perpendicular to OB. PQ is perpendicular to OB. And since PQ is perpendicular to OB and OB is also a chord of this circle, so therefore this OB will bisect this. So I can say PA and PB AQ will be equal. Find area of triangle PBQ। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीक्यू। जेई 2021 में ये क्वेश्चन आया था, जो कि 11th का कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ 10th का जो आप पढ़ते थे 10th और 9th में, उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन बनाया गया था। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट अगर हो गया तो आप इजीली कर पाओगे। बट फॉर दैट यू विल हैव टू नो द फॉर्मूलाज व्हिच यू लर्न इन योर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। अभी जस्ट मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्राई करिए एक बार। आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीपीक्यू इज नॉट अ बिग डील। एरिया इज नथिंग बट हाफ इनटू बेस। सो बेस इज पीक्यू इनटू एबी। ठीक है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। सो एबी इज 12। ऑल यू हैव टू डू इज समहाउ फिगर आउट कि कैसे पीक्यू फाइंड किया जाए। ठीक है, ट्राई करिए। इसका कोई क्वेरी है क्या? मैं देख लेता हूँ एक बार। नहीं है ना, ठीक है। ये हमारे जुनारदियन, ये हमारे सेल्टी, कुछ पूछना है तो पूछो। कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आया है तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद वी विल स्टार्ट द 11th वाला पार्ट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म। जैसे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन वेरियस फॉर्म पढ़ते हैं, वैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, आई एम गेटिंग ए कॉल फ्रॉम ऑफिस, आप लोग करो इसको ट्राई। हाँ भाई जी।
चलो देखते हैं इसको। ये रिप्लाई, ओके आई कैन सी, सी और डी दो आंसर। चलो देखते हैं। वेरी गुड। सी एंड डी, 26√3 और 26√2, दो तो नहीं होगा, एक ही होगा आंसर। तो देखो, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है कि यहाँ से मेरे पास हाफ इंटू पी क्यू इंटू कितना हो जाएगा ए बी, और ए बी कितना है 12। तो 6 टाइम्स ऑफ पी क्यू। सर हमें पी क्यू किसी तरह निकालना है। अब हम देख, एक चीज यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है। आई कैन क्लियरली ऑब्जर्व वन थिंग, दैट दिस पी क्यू which is nothing but a code, this PQ which is nothing but a code, and this OB which is also a code, are intersecting each other, so we can apply this formula. We can apply this formula here. So ये हो जाएगा आपका PA into PQ is equal to OA into AB, ठीक है। और क्योंकि we know we know that this OB is bisecting this code PQ, so we can also say that AP is equal to AQ. सो हम किसी एक को रिप्लेस कर लेते हैं, तो एपी AQ को AP से रिप्लेस कर लेते हैं। तो 1 into 12, AP square is, it is 12, so AP is nothing but under root of 12, and under root of 12 is 2√3. Okay, so my AP is 2√3 units. Now if AP is 2√3, so AQ is nothing but double of this, so this is nothing but 4√3. So finally यहाँ पे हम, सॉरी AQ बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी PQ, PQ AP तो हमने निकाल लिया था PQ, ठीक है। सो दिस इज PQ। सो हाफ इंटू, हाफ का तो हमने सॉल्व कर ही लिया ना। सो दिस इज 6 into 4√3 विच इज 24√3 स्क्वायर यूनिट्स। सो आंसर इज करेक्ट। किस किसने आंसर दिया था? सर सी, सी यस, ओके वेरी गुड। सो जनार्दन ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, विच इज करेक्ट, 26√3। 24√3 आ रहा है माय डियर, 24√3 आना चाहिए। चेक करिए, 24√3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 24√3, ठीक है। 24√3 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन, नॉट फीलिंग दैट वेल। ठीक है, आई विल स्टार्ट विथ इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स इन वेरियस फॉर्म in our next session.
ओके। आज काफी लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया, इसलिए आई डोंट वांट टू स्टार्ट दिस फ्रेश टॉपिक, फिर वरना वापस दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। ओके देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू, बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।